بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور علی بن سفیان کہیں جا رہے تھے کہ اچانک علی بن سفیان کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا، اور وہ درد اتنا شدید تھا کہ علی بن سفیان درد کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا۔ سپاہیوں نے علی بن سفیان کو اٹھایا اور محل لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے شاہی حکیم کو حکم دیا کہ علی بن سفیان کا معائنہ کرو، لیکن شاہی حکیم نے پورا زور لگا دیا، لیکن علی بن سفیان پھر بھی درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا۔ جب ارد گرد کے حکیموں کو بلایا گیا تو پھر بھی علی بن سفیان کو درد سے نجات نہیں ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کا دایاں بازو تھا۔ سلطان سوچنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ علی بن سفیان اس تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ اتنے میں سلطان کے ایک وزیر نے بتایا کہ حضور، فلاں گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا ہے جو ایسی بیماریوں کا بہتر طریقے سے علاج کر سکتا ہے، اور اس نے کئی مرتبہ اپنی حکمت کو بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ثابت بھی کیا ہے۔ تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا اور فرمایا، اس حکیم کو کہو کہ سلطان معظم کا حکم ہے کہ فوراً محل میں حاضر ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر وہ سپاہی اس حکیم کے گاؤں میں روانہ ہو گیا اور سلطان کا پیغام دے کر واپس آ گیا۔ وہ حکیم شفا خانے میں گیا اور علی بن سفیان کا معائنہ کرنے کے بعد ایسی دوائی پلائی کہ فوراً علی بن سفیان کا درد ٹھیک ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اور علی بن سفیان اس سے بڑے متاثر ہوئے کہ جہاں بڑے بڑے حکیم اس کا علاج نہیں کر سکے، وہاں ایک چھوٹے سے حکیم نے آتے ہی علی بن سفیان کا علاج کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس پر کافی اعتماد آ گیا، اور سلطان نے اس حکیم کو کہا کہ تم میرے شاہی حکیموں میں شامل ہو جاؤ، اور سلطان نے اس کو محل میں حکیم کی ملازمت پر رکھ لیا۔ چند دن گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ حضور، میری چھٹی حس کہتی ہے یہ جو حکیم جس نے میرا علاج کیا تھا یہ کوئی حکیم نہیں، مجھے اس کی حرکات بہت مشکوک لگتی ہیں، کیونکہ علی بن سفیان جاسوسوں کو پکڑنے کا ماہر تھا۔ اس لیے علی بن سفیان نے اس کی کوئی مشکوک حرکت دیکھ لی، جس سے علی بن سفیان کو لگا کہ وہ جاسوس ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب تو یہ ہمارا قابل بھروسہ حکیم بن چکا ہے، اس نے چند دنوں میں کتنے زخمیوں کو ٹھیک کیا، ہم اس پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور، میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے ہم اس حکیم کا امتحان لیں گے۔ اگر یہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو یہ غدار نہیں ہوگا، اور اگر یہ فیل ہوا تو یہ پھر غدار ہوگا، اور یہ کسی دشمن کی چال ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی ترکیب؟ تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، میں ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں جانتا ہوں جس کی خوشبو تقریباً آدھے میل سے دور تک آنے لگتی ہے۔ آپ اس حکیم کو اپنے پاس بلائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے فلاں جڑی بوٹی جنگل سے تلاش کر کے لے آئے، اور اسے حکم دے کہ یہ جڑی بوٹی فلاں علاقے میں ملتی ہے، لیکن اس بات کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی جڑی بوٹی نہیں ہے، بلکہ میں خود اس علاقے میں جا کر چند جڑی بوٹیوں کے پودے لگا دوں گا، اور جیسے ہی وہ حکیم اس جنگل میں داخل ہوگا تو اگر وہ سچ میں حکیم ہوا تو وہ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان جڑی بوٹیوں کو تلاش کر لے گا، لیکن اگر وہ حکیم نہ ہوا تو وہ جڑی بوٹی اسے کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جڑی بوٹیوں کو لانے کے لیے اپنے مالک کے پاس ضرور جائے گا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ علی بن سفیان کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہ کام دیا اور کہا کہ شام تک وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ علی بن سفیان اس حکیم کا پیچھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ حکیم جنگل میں داخل ہوا تو علی بن سفیان کو ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو آنے لگی، کیونکہ علی بن سفیان نے پہلے ہی وہ جڑی بوٹیاں وہاں لگا دی تھیں، لیکن وہ حکیم ادھر ادھر دیکھتا دیکھتا آگے جا رہا تھا۔ علی بن سفیان کا شک یقین میں بدل رہا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کو جڑی بوٹی کی خوشبو نہیں آئی۔ تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد جب اس کو جڑی بوٹی نہیں ملی
क्योंकि वो एक जासूस था, कोई हकीम नहीं था, लिहाजा इसको पता नहीं था कि कौन सी जड़ी बूटी की खुशबू कैसी होती है। तो वो दोबारा अपने मालिक के पास जाने के लिए रवाना हुआ ताकि वो जाकर अपने मालिक से वो जड़ी बूटी हासिल कर ले और सुल्तान को दे दे, ताकि सुल्तान का इस पर एतबार ना उठ जाए। अली बिन सफियान इसका पीछा करता जा रहा था तो वो हकीम एक गार के अंदर दाखिल हुआ तो अली बिन सफियान गार के दहाने पर जाकर खड़ा हुआ तो इस हकीम ने अंदर जाकर किसी आदमी को कहा, मैंने सुल्तान के महल में अपने पांव जमा लिए और सुल्तान अब मुझ पर दूसरे हकीमों से भी ज्यादा भरोसा करता है। मैं चंद दिनों में बहुत खास मालूमात आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन अब सुल्तान ने मुझे फलां जड़ी बूटी कही है, वो तुम मुझे लाकर दे दो ताकि मैं सुल्तान को दे दूं, ताकि उसको मुझ पर शक ना हो। जब ये बात अली बिन सफियान ने सुनी तो फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि इस गार को चारों तरफ से घेर लो। और चंद सिपाही अंदर गए और इस हकीम को और इसके मालिक को पकड़ कर ले आए और आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर किया। और अली बिन सफियान ने सुल्तान को कहा कि यह हकीम बिल्कुल गद्दार है और यही इसका मालिक है जिसने इसको मेरे इलाज के लिए इस हकीम की जगह भेजा था, ताकि ये मेरा बेहतर इलाज करके हमारा एतमाद जीत सके और हमारी खुफिया मालूमात अपने इस मालिक तक पहुंचा सके। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो इन दोनों का सर कलम कर दिया और कहा कि दुश्मन तो मेरे सामने बच सकता है लेकिन गद्दार कभी नहीं। दोस्तों, आपको यहाँ पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। एक दफा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अली बिन सुफियान को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाजार में जाकर अपने लिए कुछ खरीदना चाहता हूं और इसी तरह बाजार की सैरो तफरी भी हो जाएगी। जब ये बात अली बिन सफियान ने सुनी तो अली बिन सफियान कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, ये सल्तनत भी आपकी और ये बाजार भी आपके, तो आपको किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि दूसरी तरफ मुझे यह सोच आ रही है कि अगर मैं बाजार में गया तो बाजार में मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग जाएगी और ताजरों के काम पर असर पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी गरीब के रिज़्क़ में रुकावट आए। तो अली बिन सफियान थोड़ी देर सोचने में मसरूफ हो गया और फिर कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप बाजार में खरीदो फरोख्त भी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और इसी बहाने बाजार की सैर तफरी भी हो जाएगी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बताओ कौन सी तरकीब है। तो अली बिन सफियान ने कहा, हुजूर, आप बेस बदल कर बाजार में चले जाएं और खरीदो फरोख्त करके वापस आ जाएं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं। अली बिन सफियान की यह तरकीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को पसंद आ गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक आम आदमी का भेष बदला और हाथ में एक डंडा लिए घोड़े पर रवाना हो गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बाजार में पहुंच गया। हर तरफ लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे क्योंकि लोग खरीदारी बहुत ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि आगे ईद उल फितर आने वाली थी, इसलिए बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ताजर के पास गए और कपड़ा देखने के लिए ताजर को मुखातब किया। ताजर ने आपके सामने बहुत सारे लिबास रखे और कहा, हुजूर, इनमें से जो आपको पसंद आए वो बता दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इन कपड़ों को पसंद कर रहा था कि अचानक बाजार की नुक्कड़ से लोगों की शोर की आवाज आने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ताजर से पूछा कि यह शोर किस वजह से है। तो इस ताजर ने कहा, भाई, इस बाजार की नुक्कड़ पर मुसलमानों ने एक जिमींदार से जमीन खरीदी ताकि इस जगह पर मस्जिद बना सकें, ताकि बाजार में मौजूद ताजर और आने वाले मुसाफिर मस्जिद में नमाज अदा कर सकें। लेकिन बाजार के ताजरों ने जिमींदार से जमीन खरीदी तो इसने धोखे से ऐसे मुआहिदे पर हमसे दस्तखत करवा लिए जिस पर लिखा था कि जमीन से तकरीबन 15 फुट के बाद जमीन का वो मालिक जिम्मेदार हो जाएगा और वो जिसे चाहे दे देगा। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो कहा कि ये बड़ी अजीब बात है कि
जमीन से 15 फुट के ऊपर के बाद वो जिम्मेदार जमीन का क्या करेगा? तो इस ताजर ने कहा, भाई वो जिम्मेदार बड़ा ही मुनाफिक निकला, इसने मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने के लिए एक चाल चली। सुल्तान ने कहा, वो कैसे? तो इस ताजर ने कहा, अब इस जिम्मेदार ने मुसलमानों को कहा है कि जब तुम 15 फुट तक अपनी मस्जिद की तामीर कर लोगे तो 15 फुट के बाद मैं मस्जिद से ऊपर एक शराब खाना बनाने के लिए ईसाइयों को जगह दे दूंगा। सुल्तान ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है? ताजर ने कहा कि वो जिम्मेदार चाहता है कि वो मस्जिद की छत पर इन ईसाइयों को शराब खाना बनाने के लिए जगह देगा। सुल्तान ने कहा कि यह तो सरासर ज्यादती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आहिस्ता आहिस्ता इस भीड़ की तरफ बढ़ने लगा कि जाकर मालूम करे कि असल में बात क्या है। लेकिन इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस भीड़ के करीब जाने ही लगा था कि पीछे से आपके एक खुफिया सिपाही ने आकर खबर दी कि हुजूर, पड़ोसी बादशाह का एलची महल में आपके लिए बहुत खास पैगाम लेकर आया है और वो आपका इंतजार कर रहा है। अली बिन सफियान ने पैगाम भिजवाया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आप महल पहुंचें, क्योंकि पैगाम बहुत कीमती है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुनी तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस उस जगह से महल की तरफ रवाना हो गया और उधर वो बाजार के ताजिर और ईसाई यह मामला लेकर काजी साहब के पास पहुंचे और काजी साहब के सामने मुकदमा पेश किया। जब काजी साहब ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुने तो ईसाई ने फिर वही दस्तावेजात दिखाई जिन पर तमाम ताजरों के दस्तखत किए गए थे। अब काजी साहब ने कहा कि कानूनन तो ये मस्जिद की छत पर कुछ नहीं बना सकते, लेकिन तुम सब ताजरों ने अपने ही हाथों से इस पर दस्तखत कर दिए हैं कि जमीन से 15 फुट के ऊपर यह जिम्मेदार असल जमीन का मालिक होगा और वो जिसे चाहे वो जगह दे सकता है। काजी साहब ने कहा कि अब इन दस्तावेजात को देख कर ही फैसला सुनाऊंगा और इस काजी साहब ने मजबूरी में आकर फैसला इन ईसाइयों के हक में कर दिया। इन दोनों ग्रुपों के दरमियान कशीदगियां पहले से ज्यादा बढ़ गईं और पूरे बाजार में फसाद फैलने लगा और दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो रहा था, क्योंकि इसके पीछे दुश्मन की बहुत बड़ी चाल थी। लेकिन अभी तक इस चाल को कोई भी नहीं समझ पा रहा था। इत्तेफाक से इस काजी साहब को ख्याल आया कि मैंने अपने ओहदे की लाज रखते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया, लेकिन अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास यह मुकदमा लेकर जाएं तो वो इसका कोई ऐसा मुनासिब हल निकालेगा जिससे दुश्मन की चाल मलिया मेट हो जाएगी और वो ईसाई धूल चाट कर वापिस चले जाएंगे। यह खबर सुनकर तमाम ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खुली कचहरी में पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अदालत में मौजूद था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा तो इन्होंने वही सारी बात बताई जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस बाजार में मौजूद ताजर ने बताई थी। जब सुल्तान ने दोनों के दलाइल सुने और इन दस्तावेजात को देखा तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मुआहिदा वही होता है जिसमें दोनों फरीकैन पूरे पूरे हकाइक जान लें, तभी वो मुआहिदा पाया तकमील तक पहुंचता है। पहली बात, यह मुआहिदा मेरी नजर में किसी काम का नहीं, क्योंकि इस मुआहिदे पर इन ताजरों से धोखे से दस्तखत करवाए गए। लेकिन अगर मैं इस बुनियाद पर फैसला इन ताजरों के हक में दे दूं तो तुम ईसाई यही समझोगे कि मैंने मुसलमानों की तरफदारी की और इंसाफ से हटकर फैसला किया और तुम मेरे पर शक करोगे। लिहाजा तुम मुसलमानों के मस्जिद बनाने के बाद मस्जिद की छत पर शराब खाना बनाने के लिए अपना सामान तैयार करो। ये बात मुसलमान ताजरों ने सुनी तो बड़े हैरान हुए और आपस में सरगोशी करने लगे कि यह सुल्तान को क्या हो गया, हम यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए आए थे, उल्टा ये इन ईसाइयों के साथ मिल गया है। तो जब वो ईसाई चले गए तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन ताजरों को अपने पास बुलाया और कहा कि कभी भी पूरे हकाइक जाने बगैर तनकीद करना अक्लमंदी का काम नहीं। पहले तुम मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारा दिल करे तुम अपनी राय दे देना। ताजरों ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप ही हमें बेहतर तरीके से समझाएं। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ताजरों को कहा कि तुमने जिम्मेदार से यही मुआहिदा किया था कि तुम जमीन से 15 फुट की बुलंदी तक अपनी मस्जिद तामीर करोगे और इसके बाद वाला हिस्सा वो जिम्मेदार चाहे किसी को भी दे सकता है। तो तमाम ताजरों में से एक ताजर बोला,
जी हाँ सुल्तान मुअज्जम, ऐसा ही इस मुआहिदे में लिखा गया है। तो सुल्तान ने कहा कि तुम जाओ अपनी मस्जिद की तामीर शुरू करो, जब मस्जिद तामीर हो जाए तो मुझे बताना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुमने मस्जिद की तामीर सिर्फ 14 फुट से कम रखनी है, ऊपर नहीं करनी। ताजर वहां से चले गए। इन्होंने जाकर मस्जिद की तामीर शुरू कर दी। जब मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई तो उधर से वो ईसाई अपनी तामीर शुरू करने के लिए वहां पहुंच गए। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक ताजर पैगाम लेकर आया कि सुल्तान मुअज्जम, हमारी मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और अब वो ईसाई अपना सामान लेकर पहुंच चुके हैं। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उसी वक्त घोड़े पर रवाना हुआ और इस बाजार में पहुंच गया। तो ईसाइयों से कहा कि तुम्हारा क्या मुआहिदा हुआ था? इन्होंने कहा कि हमारा यही मुआहिदा हुआ था कि हम 15 फुट के ऊपर मस्जिद की छत पर शराब खाना बनाएंगे। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक मामार को कहा कि ये मस्जिद की बुलंदी कितनी है? जब इसने नापा तो इसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, ये सिर्फ 14 फुट तक है। तो अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि तुम्हारा मुआहिदा 15 फुट का था, तो तुम 15 फुट के ऊपर हवा में जो चीज भी बनाना चाहो बना सकते हो, हमें तुम्हारी इस बात से कोई गरज नहीं, लेकिन इससे नीचे तुम एक ईंट भी नहीं लगा सकते। जब ये बात इन ईसाइयों ने सुनी तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई और वो ताजर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी को देखकर और तमाम बाजार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। और इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के जासूसों ने मालूमात हासिल कर ली कि सुल्तान मुअज्जम, ये पड़ोसी बादशाह की एक चाल थी जो मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़वा कर बाजार में फसाद डालना चाहता था और इनका मालिक वो जिम्मेदार था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही भेजे और उसी वक्त इस जिम्मेदार को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने हाजिर किया गया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम लोगों के सामने इस जिम्मेदार का सर कलम कर दिया और कहा, जो भी सुल्तान की इस सरजमीन पर गद्दारी करने की कोशिश करेगा इसका अंजाम यही होगा। जो राह हक का मुसाफिर होता है अल्लाह ताला उसे कभी गिरने नहीं देता और उस जगह से अपने बंदे की मदद करता है जहां से किसी का गुमान भी नहीं होता। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली हमारे चैनल समर वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए। अल्लाह हामी नासर।